One community whose confidence Mahayuti, particularly BJP, lost during 2024 Lok Sabha elections was the trading community. Right now we are in Maharashtra's Nashik region. We are being joined by a group of traders and exporters, and we'll try and understand from them, has anything changed for them in the last few months, and how exactly, are they feeling when it comes to the Vidhan Sabha elections 2024. Vikas ji, if you could help us understand that, right before Nashik went to polls for Lok Sabha elections, the export restriction was lifted. And right before the Vidhan Sabha elections, the state assembly elections, the MEP has been removed and the export duty has also been reduced. Will it help you guys? Can I say all is well now, or are you still facing issues? Yeah, some issues are there. First of all, I just want to tell everyone, because exports are like, people think that we exports a lot. But out of our total production, India export only 7 to 8% of total production. It's a very small number, but it generate a good revenue. And another thing, now how people are making means like due to government intervention, we lose our market. And it's history, India always having 3 seasons of onion. If one season issues come, then next season we see bumper crop, because farmers getting more money, they get more morale to put. So this time also what happening, government when reduced the duty, our crop got old, and new crop is facing issues like La Nina and heavy rain. Due to that, even in September itself, we thinking that prices may come down around 10 to 15, but it's not happened due to rain. But now at that time, what happened, our competitors, Pakistan and China, they taken our lot of markets here. So now we have to again go back and do marketing, and when things go from our hand, then taking it back take a time, How long? How long will it take now? It take about 1 to 2 years, I think, because now I just want to tell you that China is very aggressive. They are doing more R&D, and their technology are very good. They are even using and copy our seed, Right. So this thing government just need to see, because this exports give livelihood to about 30 to 35 lakh people. Absolutely, and the market, Indian market is being captured by competitive nations. Obviously, प्याज के एक्सपोर्ट की बात करें, इन्होंने बात करी कि किस तरह से जो बाहर एक्सपोर्ट हो रहा था उसको लेकर के नुकसान हुआ. अब क्योंकि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई है और MEP भी हटा दिया गया, तो अब आप लोगों के लिए स्थिति बेहतर होगी? अभी मैडम ऐसा है कि जो मंडी में माल आ रहा है ओनियंस, ये 40 रुपए से लेके 46 रुपया आज भी यहाँ माल बिका है. अगर हम वो माल देशावर में दिल्ली में भेजेंगे तो 45 का माल लिया तो उसके ऊपर 5 रुपीज खर्चा आता है, यानी 50 रुपए बिकता है. लेकिन गवर्नमेंट का जो माल यहाँ पे स्टॉक किया है, वो कल परसों यहाँ से एक दिल्ली रवाना हुआ था. वो माल दिल्ली में 35 रुपए किलो आज बिक रहा है. अगर वो माल 35 में बिकेगा तो किसान को हमको यहाँ पे वो माल 30 रुपए से लेना पड़ेगा. तो आज जो व्यापारी 40 रुपए से लेके 46 रुपए प्याज व्यापारी ले रहा है और गवर्नमेंट उधर जाके 35 रुपया माल बेच रहे हैं, तो ये कौन सा धंधा है? लेकिन सरकार तो कह सकती है कि जी हम महंगाई कंट्रोल में करने के लिए दाम कम रख रहे हैं. आज पूरा भारत देश ये किसानों पे जिंदा है. अगर किसान ही जिंदा नहीं रहेगा तो हम और व्यापारी या सरकार कोई भी जिंदा नहीं रह सकती. तो पहले सरकार ने किसान का ही सोचना चाहिए. तो आप कह रहे हैं नाफेड ने दाम गिरा दिया किसानों के लिए भी, ऐसा कह रहे हैं आप? इसके लिए आज, नहीं तो अगर नाफेड माल नहीं लेता तो आज यहाँ पे प्याज 50 से लेके 60 रुपए किलो बिकता. करेक्ट. मैं सोयाबीन की बात भी कर लेते हैं हम लोग. आप सोयाबीन ट्रेडर्स हैं. सोयाबीन के ट्रेडर्स को क्या समस्या आ रही है? एक्चुअली मैम हो रहा क्या है, मार्केट में गवर्नमेंट अपने को बोलती है कि भैया तुम्हारे 4892 रुपए में हम खरीदेंगे, लेकिन देखा जाए किसानों की MSP, किसानों के MSP, लेकिन देखा जाए तो ग्राउंड पे कोई उनका केंद्र नहीं खरीदी के लिए. सबसे पहली बात, ना उनका कोई कंडीशन जारी हुआ है कि हाँ मॉइस्चर इतना चाहिए, इतना कटिंग होगा, इतना ये दाम कैसे लेंगे. शेतकरी लोगों का रजिस्ट्रेशन का शेतकरी लोगों को पता नहीं. आज शेतकरी बहुत हालत खराब है शेतकरी लोगों का. लेकिन इन लोगों का हालत हम लोग भी देखते हैं जमीन पे, हम भी शेतकरी से भी आते हैं हम लोग. लेकिन होता क्या है, गवर्नमेंट सिर्फ बताती है कि भैया 4892 आपको दिया, आप कह रहे हैं कि कहा MSP पे खरीदारी नहीं हो रही है. हाँ कहा दिए. और उसका ट्रेडर्स को क्या नुकसान हो रहा है? ट्रेडर्स को नुकसान वो हो रहा है कि अभी शेतकरी लोगों का यहाँ पे जैसे 4150 रुपए कुछ सोयाबीन बिका, कुछ 4200 बिक रहा है और 3800 भी बिक रहा है. ग्रेडिंग के हिसाब से बिकता है. तो शेतकरी लोग हम लोगों पे नाराज होते हैं. भैया आप तो गवर्नमेंट बोल रही है 4892 का दाम है
और आप बोल रहे क्या 4100 ले रहे 4200 ले रहे, लेकिन हम लोग जो प्लांट को माल दे रहे वहाँ पे दाम आज 4500 का है। 300 रुपये हम लोगों को खर्चा आ रहा है, तब भी हम लोग 50 रुपये नुकसान में आज के हिसाब से। लेकिन हम भी सोच रहे हैं क्या कुछ गवर्नमेंट ने भी किसी का खरीदा, अभी समझो ये मार्केट है तो यहाँ पे मार्केट में लगा ना गवर्नमेंट ने काटा चालू करना, उस पर देना उसको शेतकरी को। हम लोग भी चाहते हैं ना, जब शेतकरी को मिलेगा तो हम लोगों को भी उसमें परेशानी नहीं। करेक्ट। एमएसपी पे जैसे कि उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल खरीदारी नहीं हो रही है, अनाउंसमेंट हो गया है, तो ऐसे में क्योंकि सोयाबीन को स्टोर करना बहुत मुश्किल नहीं है, तो आपको लग रहा है कि किसान मार्केट में सप्लाई भी कम ला रहे हैं और इससे आपके आगे की जो चेन है डिमांड सप्लाई की वो इम्पैक्ट हो रही है? 100%, क्योंकि किसान को लगता है कि गवर्नमेंट ने एमएसपी जाहिर किया है तो 4899 रुपये, उसकी वजह से वो भी एकदम 5 से 10% माल मंडी में ला रहा है। उसको लगता है ना कि हमको इतना 5000 के करीब भाव सरकार ने बोला है और इधर ट्रेडर्स तो माल ले रहा है 3800 से लेके 4200 रुपये, पर हम तो कुछ हमारे घर में नहीं रखते, हमको तो लेके प्लांट में देना पड़ता है, तो उसकी वजह से हमको भी बहुत दिक्कत होती है ना। और किसान को तो भाव मिलना ही चाहिए, क्योंकि 10 साल के रेट में आज भी किसान माल बेच रहा है उसका। लेकिन सरकार तो कहेगी कि किसान को दाम मिले, इसी के लिए हमने 4892 की एमएसपी रखी है। फिर माल लेना चाहिए ना उन्होंने, उनका सेंटर खोलना चाहिए या मंडियों से उनको खरीदनी करना चाहिए। मंडियों तो गवर्नमेंट का ही है ना, वो तो कोई किसी का प्राइवेट नहीं है, तो उसको फार्मर को भी उतना अच्छा दाम मिलेगा। और बहुत 4899 रुपये दाम आज की डेट में मैडम बहुत कुछ नहीं है। 10 साल के पहले भी बाजार सोयाबीन का रेट था 4000 रुपया और 10 साल के बाद 800 रुपये बढ़े, उससे तो उनका जो फर्टिलाइजर ये वो जो खर्चा है उससे 10 गुना बढ़ा है। आपको लगता है कि सरकार एमएसपी पे सोयाबीन खरीदने वाली नहीं है और किसान जो है वो बेवजह इंतजार कर रहे हैं? मैडम, अगर कोई भी चीज रही तो जैसे उन्होंने अनाउंस किया है तो खरीदी करना चालू करना चाहिए ना। तो अभी तो वादा किया है, खरीदी अभी चालू किया ही नहीं किधर। और ये मेरे ख्याल से 8-15 दिन हो गए और अभी मौसम का हाल इतना खराब है नासिक जिले में, किसान करेगा तो क्या करेगा, उनके भरोसे पे बैठे रहेगा तो मर जाएगा बेचारा। और व्यापारियों की बात करें, ये जो मुद्दे आपने मुझे बताए हैं चुनाव में रिफ्लेक्ट होंगे क्या ये मुद्दे आप लोगों के आपके वोटिंग पैटर्न में? जरूर होंगे। 100%। किसान आज सबसे बड़ा चीज किसान है। अगर किसान के माल को उसको पैसा नहीं मिला तो जरूर विरोध में ही जाएगा। नहीं, व्यापारी वर्ग की बात कर रहे हैं। व्यापारी भी जरूर किसान के साथ रहेंगे। हमारा पोशिंदा किसान है तो हम हमेशा किसान के साथ रहेंगे। तो बेसिकली आपको क्या लगता है सरकार ने ये जो एक्सपोर्ट अनियन की बात करते हैं, एक्सपोर्ट जो चालू करवाया है, ड्यूटी कम करी है, एमईपी हटाया, उसका फर्क पड़ेगा उनको, फायदा मिलेगा उनको भी चुनाव में? आपको वही बोलता हूँ, 14 अगस्त 2023 उस टाइम लोकसभा थी, लोकसभा का चुनाव की वजह से सरकार ने जिस टाइम 18 से 22 रुपये प्याज पर केजी बिक रहा था, तो उस टाइम सरकार ने 40% ड्यूटी लगाई और आज प्याज 40 से 45 बिक रहा है और विधानसभा का विलक्षण है, उसके वजह से सरकार ने जो ड्यूटी लगाई थी वो 20% हटाई, एमईपी हटाई। तो ये सरकार ने प्याज को है ना चुनावी मुद्दा बना के रखा है। वो फार्मर के लिए नहीं काम कर रही है सरकार, ना जो ग्राहक है खाने वाला उसके लिए भी नहीं, उनके लिए खाली चुनावी मुद्दा है प्याज। और उसके वजह से अपना फार्मर पूरा बर्बाद हो रहा है। तो वो फार्मर ने जो अपना लोकसभा हुई तो उसमें दिखा दिया कि फार्मर क्या चीज है। और व्यापारी वर्ग व्यापारी वर्ग तो उसके ऊपर चलता है, फार्मर के ऊपर ही अपना देश चलता है, तो हम किस पे चलेंगे? तो फार्मर के ऊपर है, फार्मर ने दिखा है तो हमको भी उसके साथ रहना पड़ेगा ना। अभी विधानसभा में भी उनका वही हाल होने वाला है, उसमें कोई अलग होने वाला नहीं है। ठीक है। So these are some of the voices. The traders here at least feel that the government's policies have actually hampered them. The onion-related export policy has led to China and Pakistan capturing their market, and the MSP promise made by the government for soyabean has led to a glitch in the demand supply, and that also means financial losses for them. And the traders, these traders at least believe that all this is going to reflect in the upcoming state assembly elections. In Nashik, with camera person Swapnil Bandekar, this is Santya for CNBC TV 18. Well, thanks so much for tuning in to CNBC TV 18. Make sure you follow us and stay updated on all our social media platforms.